वेलकम बैक टू माय फिजिक्स क्लास एंड माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फ्रिक्शन ऑफ माइंड्स. So friends, we have started the new chapter, that is AC circuit, which is very interesting chapter. And in AC circuit we have seen the behavior of current with respect to EMF when we connect resistor, then inductor and then capacitor individually in a AC circuit. ठीक है. तो जब हमने resistor लगाया, हमने inductor लगाया, फिर हमने capacitor लगाया सर्किट में, तो what is the opposition offered by those individual elements to the flow of current through the circuit? We have seen it, right? और we got to know that जब हमने resistive circuit study किया, purely resistive circuit, तो उस केस में हमने देखा कि it is effective for both AC as well as DC because there was no phase difference between EMF and current, right? After that we have seen a purely inductive circuit जिसमें हमने देखा कि current जो है, the current was lagging the EMF by a phase angle of pi by 2 radian, and we have seen that this inductor offers opposition in terms of a particular term that we called as inductive reactance, which was a frequency dependent parameter, and we have seen that this inductor allows DC to flow through it, but it blocks the AC of very high frequency. Then we have seen the capacitor. When we have connected the capacitor in a AC circuit, then we have seen it also offers opposition to the flow of current in terms of particular term that we called as capacitive reactance, which was denoted by Xc, right? And in that case we have seen that reactance is a frequency dependent parameter, and this capacitor blocks DC and allows AC of high frequency to pass through it. So ये थी summary जो भी हमने last lecture में देखा उसकी. So friends, अभी next possibility क्या होगी? Individual elements जब हमने इस circuit में लगाए तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है करंट के फ्लो पे, कैसे ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, कौन किसको लीड कर रहा है, ये सब हमने देखा इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए, राइट? बट अब अगर इन तीनों एलिमेंट्स को, मतलब रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन तीनों एलिमेंट्स को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में एसी सर्किट में कनेक्ट करें तो वो तीनों का जो एक इक्विवेलेंट अपोजिशन होगा वो कितना होगा? क्या ईएमएफ करंट को लीड करेगा, क्या करंट ईएमएफ को लीड करेगा, ये आज हमें देखना है. एंड दैट्स व्हाई रिगार्डिंग आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सर्किट कंटेनिंग AC circuit containing resistor, capacitor, inductor in series. Okay, you know that combination दो टाइप्स के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पे हम अब तीनों इंडिविजुअल कंपोनेंट, जो तीनों कंपोनेंट्स हैं हमारे L, C और R, इन्हें सीरीज में ज्वाइन करेंगे, इन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे और तीनों का जो इक्विवेलेंट इफेक्ट होगा करंट पे वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है. सो दैट इज ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड एज अ सीरीज LCR सर्किट. ओके. सो अब ये सर्किट कैसा रहेगा? ये आपका सपोज इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है L. ओके. आफ्टर दैट वी हैव कनेक्टेड कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C and one resistor having resistance R. So as you can see in figure, these three components are connected in series with each other to the alternating EMF source like this, having EMF E. Okay. So standard formula में पता है ये होता है E equals to E naught sin omega t. Okay. Where E naught is a peak value, this sin omega, this omega t is a phase angle. So we have connected this three components or these three elements in series combination with this alternating EMF source E. Okay. So now you better know that series combination, as here we are using a series combination, so you know that when you connect a number of elements in a series combination, current जो flow होता है हर element के across वो कैसे होता है? सेम. और पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है, पोटेंशियल बोलो या ईएमएफ बोलो, जो ड्रॉप होता है हर एलिमेंट के अक्रॉस वो कैसा होता है? डिफरेंट, राइट? ये सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन है. पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन भी आपको पता है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट होती है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो कैसा होता है? हर एलिमेंट के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिफरेंट होता है, और हर एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल और ईएमएफ ड्रॉप होता है वो कैसे होता है? सेम होता है, राइट? सो here you have connected these three elements in series combination. So obviously
सी आफ्टर अप्लाइंग दिस अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ओके, क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा इस सर्किट में से आई। अब आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट ये इस तरह से होता है, तो इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, हर हाफ साइकिल में ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसकी वजह से जब आप एसी सर्किट डिजाइन करते हो तो मैंने कहा था कि आप करंट की डायरेक्शन शो नहीं कर सकते हो, राइट। बट अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन शो की है, सो जस्ट कीप इन माइंड दैट दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट मीन्स दिस करंट is having a fixed direction for particular instant, but for the next instant it changes its direction, again for the next instant it again changes its direction, but एक particular instant पे तो direction fixed रहेगी। So if I am showing this direction, this is the direction of instantaneous current having fixed direction at a particular instant of time, okay, but for the next instant it will reverse its direction, okay। So ये जो instantaneous current flow होगा वो कितना होगा, मैथमेटिकली वी राइट इट एज I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो जो भी ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले आप रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव सर्किट देखो, अदरवाइज आपको सीरीज एलसीआर सर्किट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जो हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे ईएमएफ और करंट के फेज रिलेशन के, वो सारे कंक्लूजन्स आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं, ठीक है। सो देखो अभी ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ जब आप सर्किट में प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट हैविंग द मैग्नीट्यूड I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज द पीक वैल्यू, ओके। सो यू नो दिस। Now right now I told you that in case of a series combination, what happens in case of a series combination, current across each elements remains same. So जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ से फ्लो होगा, वही करंट यहाँ से फ्लो होगा, वही करंट यहाँ से फ्लो होगा करके तीनों एलिमेंट्स के लिए जो करंट का इक्वेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन and in series combination the current across each element is same, okay। So the same current I equals to I naught sin omega t will flow through this inductor, this capacitor and this resistor, okay। But in series combination potential drop across each element is different, right। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा, इसके अक्रॉस डिफरेंट, इसके अक्रॉस डिफरेंट, ठीक है। सो if E is my resultant potential, okay, if E is my resultant EMF और potential, so इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसे हम EL से डिनोट करते हैं, इसके अक्रॉस EC से, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा ER से, बिकॉज डिफरेंट है तो डिफरेंट नोटेशंस यूज किए। करंट सेम है, सो सेम करंट शो किया I हैविंग मैग्नीट्यूड I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो नाउ प्रोसीडिंग अहेड, अब आप थोड़ा सा रिकॉल करो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया। व्हेन वी टॉक अबाउट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, so in resistive circuit we have seen that the phase difference between EMF and current was same, or sorry, the phase difference between EMF and current is 0, right। that means your EMF and current are in phase। अगर दोनों का phase difference 0 है तो दोनों कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, राइट। इस तरह से, मतलब इस केस के लिए ये है आपका करंट और ये है आपका पोटेंशियल, ठीक है, IR। अब इसकी बात करते हैं फॉर इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या देखा, देखो करंट तीनों के अक्रॉस सेम है, तो करंट के लिए ये हम शो कर देते हैं, ये भी I और ये भी I, ठीक है। सो ये डायग्राम थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं इस तरह से। दिस इज योर E अल्टरनेटिंग EMF, ओके। सो सी तीनों के अक्रॉस करंट सेम है, सो दिस इज I, दिस इज I, दिस इज ऑल्सो I, दिस इज ऑल्सो I, सेम करंट, ओके। नाउ इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट व्हाट हैपेंस, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट कौन किसको लैग करता है, इंडक्टिव सर्किट में हमने देखा कि करंट ईएमएफ को पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री
सो 90 डिग्री के फेज से क्या करता है, लैग करता है, राइट। सो अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो क्या है, सॉरी ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट ईएमएफ को लैग करता है, तो मैं उसका अपोजिट सेंटेंस ये कह सकती हूँ कि ईएमएफ करंट को लीड करता है, राइट। इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। इसका मतलब ही क्या है, ईएमएफ लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। सो ईएमएफ अगर लीड कर रहा है तो लीडिंग वेक्टर हमेशा कैसे रोटेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और पाई बाय 2 से कर रहा है। सो ये देखो ये एंगल हो गया पाई बाय 2, सो दिस विल बी योर EL। सो ये डायग्राम कैसे बनेगी, दिस विल बी योर EL, ठीक है, दिस इज योर I। नाउ वी टॉक अबाउट कैपेसिटिव सर्किट। बस ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई, क्योंकि इसी पे बेस्ट हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत सिंपल है LCR सर्किट, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है बताओ, हमने देखा कैपेसिटिव सर्किट में करंट ईएमएफ को, करंट क्या करता है, लीड्स ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2 रेडियन, मतलब ही 90 डिग्री। करंट ईएमएफ को लीड करता है, राइट। सो ये करंट की डायरेक्शन तो हमने फिक्स रखी तीनों में, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट ईएमएफ को लीड करता है, ठीक है, ये आपका करंट ईएमएफ को लीड करता है, मतलब ही कैपेसिटिव सर्किट में ईएमएफ करंट को लैग करता है, कितने से, 90 डिग्री से। अगर ईएमएफ लैग कर रहा है करंट को, तो लैगिंग वेक्टर हमेशा कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज, और करके ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट होके यहाँ पे आपको मिलेगा EC, ओके, एंड यू सी द फेज एंगल इज 90 डिग्री, ओके। सो यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस। फेजर है, फेजर हमने डिटेल में देखा है, आप फेजर का लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 2, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये डायग्राम ऐसी बनेगी। सो दिस इज योर EC, ओके। नाउ यू सी हियर, दिस इज योर रेजिस्टिव सर्किट in which the phase angle is 0 because both are parallel. This is your capacitive circuit in which phase angle is 90 degree, but who is leading? Here in case of capacitive circuit current is leading EMF करके current ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, और इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, EMF लीड करता है करके EMF देखो फिर से कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, ठीक है। सो नाउ प्रोसीडिंग अहेड, now you tell me, as the same current flows through all the circuits, if I ask you what will be the value of ER, what will be the value of EL, and what will be the value of EC? So E में you know the Ohm's law, Ohm's law क्या है, V equals to IR, right? Here we are replacing V by E, R, EC, EL. So यहाँ पे I जो है, यहाँ पे देखो ER के जगह पे क्या आएगा, दिस विल बी IR, राइट। बट यू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, फेजर में यू नो दैट लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स पिक वैल्यू, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स ऑलवेज पिक वैल्यू। सो पिक वैल्यू तो एक्चुअली E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये E0 R होना चाहिए था, ये E0 L होना चाहिए था, ये E0 C होना चाहिए था, बट आपके टेक्स्ट बुक में पिक वैल्यूज को E0 से ना रिप्रेजेंट करते हुए ER, EC, EL से रिप्रेजेंट किया है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस EL, ER, EC are not the instantaneous values through these elements, these are the peak values, because in phasor length of vector, this length of all this vector always represents a peak values, okay। so phasor में अगर आप यहाँ पे ER, EC, EL लिया है, इसका मतलब ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस EMF नहीं है, तो ये कौन सा EMF है, दिस इज पिक वैल्यू ऑफ EMF, ओके। सो पिक वैल्यू है तो I के जगह पे क्या आएगा, I0, राइट। सो दिस इज I0 R। सिमिलरली EL के लिए क्या आएगा, I0, ये I0 ही रहेगा क्योंकि करंट जो है तीनों में सेम है, इतना, ये है वो I0 इंस्टेंटेनियस, दिस आर द पिक वैल्यूज ऑफ करंट, ठीक है। Why I have written here I0, why not I? Are you getting this? Because this ER, this EL and EC are the peak values. And if I am writing this equation in terms of peak values, ये देखो E equals to IR है, peak value के फॉर्म में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, E0 equals to I0R, right?
सो ई नॉट ना लिखते हुए टेक्स्ट बुक में ई आर लिया है रेजिस्टर के लिए, ई एल लिया है इंडक्टर के लिए, ई सी लिया है कैपेसिटर के लिए. सो दीज आर नॉट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, दीज आर द पिक वैल्यूज, ऑलवेज रिमेंबर. सो हियर अब आप बताओ, रेजिस्टिव सर्किट में जो ऑपोजिशन ऑफर कर रहा था वो रेजिस्टर था. इंडक्टिव सर्किट में ऑपोजिशन किसने ऑफर किया था? रिएक्टेंस ने. विच रिएक्टेंस? इट वाज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL. एंड कैपेसिटिव सर्किट में ऑपोजिशन किसने ऑफर किया था? रिएक्टेंस ने. बट कौन सा रिएक्टेंस? कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच वाज डिनोटेड बाय XC. So let this be combinedly equation number 2. Okay. So I have told you the use of phasor diagram. If you have two or more sinusoidal signals and if you want to show it simultaneously, then you can take the use of phasor diagram. Now you have 3 signals. Okay. EL, EC, ER. मतलब 3 साइनसॉइडल सिग्नल्स आपके पास है, 3 साइनसॉइडल EMFs, करंट आपके EMF आपके पास है, करंट तो सेम है. तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें फेजर डायग्राम पे शो करेंगे. यहाँ पे फेजर डायग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर ये फेजर डायग्राम आपको समझ में आ गई तो मैथमेटिकल पार्ट जो है वो बहुत इजी है. बट फेजर डायग्राम जो है बहुत स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आती सीरीज LCR सर्किट की. तो वो लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम को रट लेते हैं और फेजर डायग्राम को रट के फिर मैथमेटिकल पार्ट लिखते हैं. बट आई टेल यू, फेजर डायग्राम आप रटो मत, क्योंकि रटोगे तो गलत होगी. तो देखो फेजर डायग्राम कॉन्सेप्ट से ड्रॉ करना है हमें, और सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिए. तो देखो फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज LCR सर्किट. ये फेजर डायग्राम अगर आपको समझ में आ गई तो मैथमेटिकल पार्ट बहुत इजी है. देखो इस तरह से ये this is your x-axis, this is your y-axis and this is your origin. Okay. Now करंट तीनों के अक्रॉस सेम है तो ये रेफरेंस एक्सिस पे हम करंट ड्रॉ करेंगे. लाइक दिस इज योर करंट वेक्टर. ओके. सो लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स यू द पिक वैल्यू दैट इज I0. ओके. अब पहले रेजिस्टिव सर्किट, फिर लेंगे इंडक्टिव, फिर लेंगे कैपेसिटिव. ठीक है. तो रेजिस्टिव सर्किट में करंट और EMF दोनों इन फेज है, मतलब दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब फेज एंगल 0 है. दोनों अगर पैरेलल है तो एक ही वेक्टर पे दोनों शो होंगे. सो दिस इज योर ER, दिस इज योर ER. ओके, लाइक दिस, बिकॉज बोथ आर पैरेलल. देयर इज नो फेज डिफरेंस. अगर फेज एंगल होता था तो दो वेक्टर ऐसे होते थे या फिर कुछ ऐसे होते थे, कोई भी कंडीशन होती थी. बट नहीं है, 0 है, सो दे आर पैरेलल. अब बात करते हैं कैपेसिटिव सर्किट की. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट के केस में क्या होता है, करंट EMF को लीड करता है. करंट ये एक्सिस पे हमने ऑलरेडी शो कर दिया, तीनों के लिए सेम वैल्यू है. ठीक है. EMF को लीड करता है, मतलब EMF लैग करता है. EMF लैग करता है तो वो कैसे रोटेट होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज. सो दिस इज योर EC. Understood? So you can see this phase angle is of pi/2. pi/2 से ही तो लैग करता है. अब बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट की. तो इंडक्टिव सर्किट में आपने देखा कि EMF करंट को pi/2 से लीड करता है, राइट. और मैं कह सकती हूँ कि करंट EMF को pi/2 से लैग करता है. सो करंट की तो ये फिक्स्ड एक्सिस हमने ले ली. इंडक्टिव सर्किट में EMF करंट को pi/2 से क्या करता है, लीड करता है. तो ये वेक्टर ऐसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, और फेज एंगल कितना है, pi/2. सो ये दो वेक्टर में का जो एंगल है ये pi/2. सो ये ऐसे रोटेट होके यहाँ पे आएगा. सो दिस इज योर EL. ये हो गई फेजर डायग्राम. सो फेजर डायग्राम ड्रॉ करना इज नॉट अ बिग डील. सो डोंट मग अप दिस वेक्टर्स, डोंट मग अप दिस पैरामीटर्स. ओके. ये एक रेफरेंस एक्सिस पे जो कांस्टेंट करंट है तीनों के अक्रॉस वो ले लिया. ओके. एंड यू नो दैट द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पिक वैल्यू. सो दिस इज द पिक वैल्यू ऑफ दिस करंट I0 sin omega t. So this is peak value I0. Okay. आफ्टर दैट कैपेसिटिव सर्किट में EMF जो है वो लैग करता है, करके ये वेक्टर ऐसे रोटेट हुआ क्लॉकवाइज 90 डिग्री से pi/2 से. और इंडक्टिव सर्किट में EMF लीड करता है, लीड करने के वजह से ये वेक्टर ऐसे रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज. ओके, बाय pi/2 रेडियन और 90 डिग्री. सो दिस इज सिंपल फेजर डायग्राम. अगर
if I say, if I'm considering that, now you can see here the phase angle between EL and EC. Tell me how much phase angle or phase difference you can say between EL and EC. आप देख के बता सकते हो. These two vectors are anti-parallel, right? So phase difference कितना होगा? This will be 180 degree. और दो वेक्टर के बीच अगर 180 डिग्री एंगल है तो ये कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल, राइट? मतलब दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी, ठीक है? सो सपोज मैंने कंसिडर किया EL इज ग्रेटर देन EC. अगर EL EC से बड़ा है तो आपको EC छोटा बताना पड़ेगा डायग्राम में, तो हम EC ओरिजिन से इतना बताएंगे, EL बड़ा बताएंगे. सो दिस इज EL, दिस इज EC. सो both vectors are opposite having phase angle of 180 degree. और कौन बड़ा है? EL EC से बड़ा है. सो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? EL माइनस EC, राइट? बिकॉज जो बड़ा है उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, सो इनका रिजल्टेंट होगा EL माइनस EC. अब जनरली आपके पास सपोज दो वेक्टर है, ये है 7 और ये है सपोज ये यहाँ से ये है 3. सो आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4. बट 4 की डायरेक्शन क्या होगी? रिजल्टेंट की डायरेक्शन बड़े वेक्टर की ओर, मतलब इधर. सो दिस इज योर 4. सिमिलरली हियर EL EC से बड़ा है तो इसका रिजल्टेंट आया EL माइनस EC. बट इस EL माइनस EC की डायरेक्शन क्या होगी? बड़े वेक्टर की ओर. बड़ा वेक्टर कौन है? EL. सो दिस विल बी योर EL माइनस EC. ओके, सो रिमेंबर दिस. ओके, नाउ what are your ER, EC, EL? These are the peak values. Peak values. और जो alternating EMF आपने प्रोवाइड किया है वो क्या है? E. ये equals to होगा E equals to E naught. This will be E equals to E naught sin of omega t. एक तो ओमेगा टी होगा रेजिस्टर के केस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस π/2 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फेज एंगल है. बट यहाँ पे ये जो अल्टरनेटिंग EMF आपने प्रोवाइड किया है इसकी पिक वैल्यू कितनी है? E नॉट. और ये जो है ER, EC, EL ये क्या है? ऑल दिस आर दी पिक वैल्यूज. दिस आर दी पिक वैल्यूज ऑफ EMF अक्रॉस रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. सो तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस जो EMF है उन EMF की पिक वैल्यूज है ER, EL और EC. और जो आपने प्रोवाइड किया है उसकी पिक वैल्यू है E नॉट. सो इफ आई वांट E नॉट तो मुझे क्या करना होगा? इन तीनों का रिजल्टेंट लेना होगा. द रिजल्टेंट ऑफ दिस पिक वैल्यूज ER, EL एंड EC विल गिव मी दिस पिक वैल्यू E नॉट. अंडरस्टूड? सो नाउ यू सी हियर, ये वेक्टर है आपका EL माइनस EC और ये वेक्टर है आपका ER. मतलब अगर इफ आई ड्रॉ सेपरेट डायग्राम, आई इरेजिंग दिस. सो सी हियर, इफ आई ड्रॉ सेपरेट डायग्राम तो देखो ये है आपका ER, दिस इज योर I नॉट. इन दोनों का रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि EL EC से बड़ा है तो इनका जो रिजल्टेंट है EL माइनस EC, दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज योर EL माइनस EC, ओके, इन दिस डायरेक्शन. अब हो गए आपके तीन पिक वैल्यूज फॉर दोस 3 एलिमेंट्स. इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन तीनों का रिजल्टेंट आपको मिलेगा दिस पिक वैल्यू विच इज अ रिजल्टेंट पिक वैल्यू. अब ये है एक वेक्टर EL माइनस EC, इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये है तीसरा. ओके, सो इनका रिजल्टेंट किधर ड्रॉ करोगे आप? इनके बीच में, यहाँ कहीं पे. सो रिजल्टेंट ऑफ दिस EL, EC एंड ER विल गिव यू दिस पिक वैल्यू विच इज कॉल्ड एज अ E नॉट. अंडरस्टूड? ये आपने जो प्रोवाइड किया था E इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. आगे प्लस माइनस π/2 हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स. सो ये जो है दिस इज योर रिजल्टेंट पिक वैल्यू विच इज अ रिजल्टेंट ऑफ पिक वैल्यूज ऑफ दिस EMF across 3 elements, that is ER, EL and EC. अंडरस्टूड? सो ये EL, EC, ER इन तीनों का रिजल्टेंट ये मिला हमें. अगर दो वेक्टर ऐसे है तो उसका रिजल्टेंट इनके बीच ही कहीं आएगा. सो ये हो गया आपका रिजल्टेंट पिक वैल्यू. सो इस डायग्राम में भी वो रिजल्टेंट पिक वैल्यू हम ऐसे शो करेंगे. सो दिस इज E नॉट बिकॉज यू नो दैट द लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स अस द पिक वैल्यू. सो हियर दिस इज योर I नॉट.
दिस इज योर ई नॉट. सो इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ. लेट दैट एंगल बी डिनोटेड बाय फाई. ओके, सो दिस इज अ फेजर डायग्राम. ये है एक्चुअल फेजर डायग्राम जो कि आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है, इसके से हमें क्या कंक्लूजन मिला? इन सीरीज एलसीआर सर्किट. अब देखो, ये आपका रिजल्टेंट करंट जो था इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये उसका वेक्टर, ये पिक वैल्यू. ये आपने जो प्रोवाइड किया था रिजल्टेंट ईएमएफ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस हो सकता है. तो ये दोनों के बीच में ये इतना फेज एंगल है. अब आप इसमें से बताओ कौन किसको लीड कर रहा है, ईएमएफ करंट को या करंट ईएमएफ को? ये वेक्टर ऐसे रोटेट हुआ, मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ. मीन्स ईएमएफ इज लीडिंग द करंट बाय फेज एंगल ऑफ फाई. सो इन सीरीज एलसीआर सर्किट ईएमएफ लीड्स करंट by phase difference of how much? Phi. Understood? So this is very important conclusion. अब बात करते हैं mathematical portion की. So you see from this figure, अगर आपको instantaneous value चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से. ठीक है. So ये है आपका EL minus EC. So I can these two sides are equal, so this is also EL minus EC. This is your ER and this whole is your E naught. So ये है आपका E naught. Okay, length of vector gives you a peak value. So tell me from figure, if I use the theorem of Pythagoras for this right angle triangle, what I can write? I can write E naught square equals to, this is ER square plus this is EL minus EC होल स्क्वायर. अगेन आई रिपीट, यहाँ पे ई एल ई सी ई आर ये क्या है? ये पिक वैल्यूज है ईएमएफ की अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर. ओके, दिस आर नॉट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बिकॉज फेजर डायग्राम में हमेशा वेक्टर की जो लेंथ है वो हमेशा पिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. सो नाउ हियर दिस इज ई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर स्क्वायर इधर भेज दे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा. ई आर की वैल्यू आपके पास है आई नॉट आर, उसका है होल स्क्वायर प्लस ई एल की वैल्यू आपके पास है आई नॉट एक्सएल माइनस ई सी की वैल्यू आपके पास है आई नॉट एक्स सी और इनका है होल स्क्वायर. ठीक है. सो नाउ प्रोसीडिंग अहेड, नाउ जस्ट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन. सो सी ई नॉट इक्वल्स टू, यहाँ से दिस विल बी आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आई नॉट स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर. राइट. सो यहाँ से भी आई नॉट कॉमन निकलेगा और वो बाहर आने के बाद स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा आई नॉट. सो ब्रैकेट में रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी whole square. Right. So again I can write this as E naught upon I naught is equals to, यहाँ पे क्या बचा? R square plus XL minus XC whole square. Okay. So now see here, स्टार्टिंग में जो कंडीशन हमने दी थी वो आपको ध्यान में रखना है. हमने क्या अज्यूम किया था? We have assumed that XL is greater, we have assumed that EL is greater than EC करके ही इनका रिजल्टेंट ये EL माइनस EC अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया, उस पे से ये सब हमने डिराइव किया. नाउ इफ आई कंपेयर इट विथ, इफ वी कंपेयर इट with what? E naught upon I naught is equals to R. This is the expression for the purely resistive circuit. ये सीधा ओम्स लॉ है. V equals to IR. Don't be confused. V can be replaced by E, so E equals to IR for the instantaneous value, because these are the instantaneous values. Like, sorry, these are the peak values. So for the peak values, I can write E naught equals to I naught R. So E naught upon I naught कितना होगा? R. So this is nothing but the Ohm's law. So see here, if I compare, let this be equation number 3. Let this be equation number 4. So if I compare this equation with this particular equation E naught upon I naught upon R, which is nothing but the Ohm's law for the resistive circuit, you can see left hand side is same,
If the left hand side is same, I can equate a right hand side. अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोजिशन प्रोवाइड करता है फ्लो ऑफ करंट को. तो अगर हम इसको इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, सो जो रोल रेजिस्टेंस प्ले करेगा रेजिस्टिव सर्किट में, सेम रोल ये टर्म प्ले करेगी विद सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट में. एंड दैट्स व्हाई दिस टर्म is denoted by Z and equals to what, under root R square plus XL minus XC का whole square. Okay, कैसे क्या बताया मैंने, if I comparing these two equations then this term can be compared with resistance. अब resistance क्या करता है, opposition ऑफर करता है resistive सर्किट में. सो सिमिलरली ये टर्म भी ऑपोजिशन ऑफर करेंगी किस सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट में. और उस अपोजिशन ऑफर करने वाले टर्म को हमने Z से रिप्रेजेंट किया, वेयर दिस Z इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस. दिस इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट, एंड एज इट्स प्लेइंग द सेम रोल एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस टू ऑफर द अपोजिशन, इट्स SI यूनिट. इसका SI यूनिट क्या होगा, ओहम. अंडरस्टूड. सो दिस वे रेजिस्टिव सर्किट में हमें अपोजिशन ऑफर करने वाली टर्म मिली थी रेजिस्टेंस. इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और सीरीज एलसीआर सर्किट में जो अपोजिशन ऑफर करने वाली टर्म हमें मिली उसे कहते हैं इम्पीडेंस. दिस इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस. ओके, सो यूनिट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंसेस और इम्पीडेंस तीनों का यूनिट सेम है, ओहम, क्योंकि तीनों का काम सेम है, to offer the opposition. Okay, so now proceeding ahead. यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है. तो अब देखो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करना है. This reciprocal of impedance is called as admittance. Reciprocal Z is called as impedance. This is the opposing factor in series LCR circuit. So the reciprocal of this impedance is called as admittance and its SI unit. इसका SI यूनिट क्या होगा, Z का अगर ओहम है तो 1/Z का क्या होगा, ओहम इनवर्स. ओके, सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ एडमिटेंस विच इज न्यू टर्म फॉर यू. ओके, नाउ सो वी गॉट द कंक्लूजन दैट अभी मैंने रेज किया इन टर्म्स ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट, द रिजल्टेंट दिस EMF लीड्स द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ phi, राइट. सो EMF लीड्स करंट बाय फेज एंगल ऑफ phi, राइट. सो अगर आपसे कोई पूछे कि ये फेज एंगल की वैल्यू कितनी होगी, phi तो एक जनरल नोटेशन है, बट phi की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री 0 तो हो नहीं सकती, 30, 90 व्हाटसोएवर नॉन जीरो वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना होगा. सो फ्रॉम इक्वेशन इफ आई आस्क यू व्हाट इज tan phi, सो फ्रॉम योर ट्रिगोनोमेट्री, tan of theta equals to opposite upon adjacent. Your opposite is this. For this angle phi, this is opposite, this is adjacent. This is what? EL minus EC upon adjacent कितनी है, ER. ठीक है. So tan phi equals to इक्वेशन 1 में यहाँ पे मैंने लिखा था, जो इरेज किया है आपकी बुक में नोट किया होगा आपने. EL की वैल्यू कितनी थी, EL की वैल्यू थी I XL, राइट, I नॉट XL. EC की वैल्यू थी I नॉट XC अपॉन नीचे, ER की वैल्यू थी I नॉट R, राइट. सो tan phi, यहाँ से I नॉट कॉमन निकाले तो ये I नॉट कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी XL माइनस XC अपॉन R, एंड सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ योर फेज phi. हाउ मच, tan को इधर भेज दो, tan इनवर्स ऑफ दिस इज tan इनवर्स ऑफ XL minus XC upon R. Okay, so this is the value of your phase angle phi. And now from this equation, let this be next equation number. This is your 4, this is your 5. Let this be 6. Okay, and now from this equation we have to draw 3 important conclusions. Okay, so let's now see what are those conclusions. We have to draw 3 important conclusions. Number 1, suppose I consider that, जो कि हमने पहले ही assume कर लिया था, EL is greater than EC.
अगर EL इसी से बड़ा है तो आपको पता है EL का फॉर्मूला क्या है, EL का फॉर्मूला है I नॉट XL, EC का फॉर्मूला है I नॉट XC। करंट तो कांस्टेंट है बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब आपका EL जो है प्रोपोर्शनल टू XL है और आपका EC जो है प्रोपोर्शनल टू XC है। सो अगर EL इसी से बड़ा होगा, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप XL भी XC से क्या होगा, बड़ा होगा। सो इफ दिस इज अ केस देन यू सी दिस इक्वेशन नंबर 6, इफ योर XL इज ग्रेटर देन XC। या फिर ये इक्वेशन आप देखो, ये वाला, अगर XL XC से बड़ा है तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू रहेगी XL XC से बड़ा है, मतलब कुछ तो भी जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा पॉजिटिव होगा, मतलब योर tan phi, फॉर दिस केस योर tan phi विल बी पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई योर phi विल बी पॉजिटिव। आपका phi पॉजिटिव है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो ये कंडीशन होगी क्योंकि ये कंडीशन हमने इसके लिए ड्रॉ की थी, राइट, EL इज ग्रेटर देन EC, सेम कंडीशन। So your phi is positive. So you see the figure, your phi is positive. So if this is the case, who is leading? EMF leading the current. It's rotating anti-clockwise. So for this case, EMF. या फिर आप टेक्स्ट बुक में यहाँ पे वोल्टेज लिखा है, EMF voltage you can use any term. Okay? So EMF leads current by phase angle of how much? Phase angle of phi, right? So this is the first condition. Now see the second condition. Suppose in second condition I consider EL is less than EC. अगर EL इसी से छोटा है तो क्या होगा, XL is less than XC. Okay? XL भी XC से छोटा होगा। सो इफ XL इज लेस देन XC, ये अगर छोटा है सो स्मॉलर माइनस ग्रेटर, क्या होगा, जो आपका tan phi है, ये जो रिजल्टेंट है ये निगेटिव आएगा, बल्कि जो आपका फेज एंगल है ये भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, राइट। सो अगर ये निगेटिव है तो क्या होगा, देखो ये डायग्राम के थ्रू भी हम कैसे बता सकते हैं। ये तो आपका फिक्स था I नॉट, राइट। सो दिस वाज योर ER। अब आपका EL इसी से बड़ा है, ये आपका इधर EL है ऊपर, ये ध्यान में रख लो, ये ER, ये EL, ये EC हमेशा के लिए। अब आपका EL जो है वो EC से छोटा है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, EC माइनस EL। अब EC अगर बड़ा है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये EC माइनस EL, ये किधर रहेगा, बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में। बड़ा वेक्टर कौन सा है, EC, उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। सो दिस विल बी योर EL माइनस EC। आई एम शोइंग यू कि हाउ फॉर्मूला से तो फाई निगेटिव आता है, ये बता दिया, डायग्राम के थ्रू भी प्रूफ होता है। तो अब देखो, अभी आपके तीन वेक्टर, मतलब ये तो दोनों का ये रिजल्टेंट और ये तीसरा ER। सो दिस इज योर ER, दिस इज योर EL माइनस EC। अब अगर दो वेक्टर ऐसे है तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में ही आएगा। सो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा जो होता है पिक वैल्यू E नॉट, राइट। सो अब ये I नॉट और E नॉट इनके बीच में ये हुआ फेज एंगल phi। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो phi है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो उसमें phi कैसे रहेगा, ये रहेगा निगेटिव। और ये डायग्राम भी क्या बोल रही है आपको, अगर phi आपको पॉजिटिव है तो EMF लीड कर रहा है, phi निगेटिव है तो उल्टा कर दो, कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा। ये थ्योरेटिकली बोल दिया, डायग्राम भी क्या बोलती है, देखो ये आपकी करंट, ये आपका EMF, ये EMF ऐसे रोटेट हुआ मतलब क्लॉकवाइज। और अगर आपका वेक्टर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो वो लैग करता है। कौन सा वेक्टर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, EMF, मतलब EMF ने करंट को क्या किया, लैग किया, कितने एंगल से, phi से। सो व्हाट आई कैन से हियर, दिस इज योर ER, so I can say EMF. Here EMF lags current by phase angle of phi radian. Understood? And now let's see the third case. Okay, now I can erase this diagram, or else you have to remember this equation. In third case, if EL is equals to EC, then क्या हो जाएगा, XL is equals to XC. If I put XL equals to XC, then tan phi कितना हो जाएगा, 0. So tan phi
फ्रॉम दिस इक्वेशन tan phi विल बी 0, tan phi 0 है तो phi भी कितना हो जाएगा 0. सो and this is called as, this condition is called as resonance condition. So resonance क्या होता है ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है. So ये नेक्स्ट लेक्चर का ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा. So ये आप ध्यान में रखो. तीसरी कंडीशन में हमने जब लिया XL इक्वल्स टू XC, tan phi 0 आ रहा है. tan phi अगर 0 है तो phi आपका कितना रहेगा 0. एंड फाई अगर 0 है मतलब फेज एंगल 0 है. सो फेज एंगल 0 है. सो EMF एंड करंट कैसे रहेंगे, आर इन फेज विथ ईच अदर. इन फेज है मतलब फेज डिफरेंस 0 है, मतलब ये दोनों साथ चलेंगे. कोई किसी को लीड नहीं करेगा, कोई किसी को लैग नहीं करेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये क्या कहता है हमें, ये क्या कंडीशन हो गई कि EMF करंट को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है. सो दिस इज एक्टिंग फॉर दिस कंडीशन, दिस इज एक्टिंग एज अ इंडक्टिव सर्किट, राइट. सो हियर दिस इज इंडक्टिव सर्किट, दिस इज एक्टिंग लाइक इंडक्टिव सर्किट. फॉर दिस कंडीशन हु इज लैगिंग, E लैग्स करंट, मतलब EMF करंट को लैग कर रहा है, मतलब ये करंट EMF को लीड कर रहा है. ये कौन सी केस हुई, ये केस हुई कैपेसिटिव सर्किट की, कैपेसिटिव सर्किट की. और यहाँ पे फेज एंगल 0 है, कोई किसी को लीड लैग नहीं कर रहा है. तो ये कौन सी केस हुई, ये केस हुई रेजिस्टिव सर्किट की. ठीक है, तो ऐसे 3 कंडीशंस हमने देखी. सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज LCR सर्किट. Different AC circuits that we have discussed till now from the last 3 lectures, last 4 lectures, that is resistive circuit, inductive circuit, capacitive circuit, and the combination of these 3, that is series LCR circuit. इन सब की जो समरी है वो यहाँ पे मैंने राइट डाउन की है. सो दिस इज द समरी ऑफ ऑल द AC circuits. सो दिस इज द कंपैरिजन. ओके, सो अगर आप कंपेयर करके स्टडी करोगे तो आपको कोई पॉइंट में डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट. सो देखिए, this is resistive, inductive, capacitive, and this is series LCR circuit. So first factor, if we talk about the opposition, then in terms of resistive circuit, resistance offers opposition where R equals to E0 upon I0, simple Ohm's law. You can also call it as a ohmic circuit. In inductive circuit, the opposition is offered by reactance. Inductive reactance formula XL equals to omega L, where omega is a frequency, or you can say angular velocity or angular frequency, which is equals to 2 pi f. कैपेसिटिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, जो अपोजिशन ऑफर्ड होता है, दैट इज बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस X इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C. और सीरीज LCR सर्किट में जो फैक्टर अपोजिशन ऑफर करता है उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस, सिंबल Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. अब इसी पे से ये वाला पॉइंट रिलेटेड है. सो टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी, दिस R इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. This inductive reactance XL equals to omega, and omega की वैल्यू अगर 2 pi f पुट करें, so this is depends on frequency as it contains omega 2 pi f. It also depends on frequency. ये also contain XL XC. XL XC की वैल्यू अगर हम ये पुट करें तो इसमें भी omega equals to 2 pi f आएगा. So it's also depends on frequency. Next, talking about the phase relation. So you know that in case of a resistive circuit, current and EMF are in phase, so the phase difference is 0. In inductive circuit, EMF leads the current by a phase angle of pi by 2. In capacitive circuit, current leads EMF by a phase angle of pi by 2 radian. And in series LCR circuit, it depends on the conditions. If XL equals to XC, then phase angle is 0. So, current and EMF will be in phase. If XL is greater than XC, phase angle will be positive. So, in that case, EMF will leads the current, so it acts as a purely inductive circuit. And if XL is less than XC, phase angle will be negative, and that's why current will lead the EMF by a phase angle of phi. और उल्टा आप कह सकते हो EMF lags current by a phase angle of pi by 2 radian. Okay, so it depends on condition. Now talking about the effect on flow of current. So resistive circuit, it is this is applicable for both AC as well as DC. It is effective. बट इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर क्या करता है, AC को ब्लॉक करता है और DC को अलाउ करता है. कैपेसिटर उल्टा करता है, क्या करता है, इट ब्लॉक्स DC एंड अलाउज AC ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी.
और ये डिपेंड्स वेदर इट एक्टिंग विच काइंड ऑफ, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ना, सो विल नॉट टॉक अबाउट दैट. नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी, मैंने आपको पहले ही बता दिया. सो दिस इज द समरी. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस समरी so that it will be easier for you to do the comparative study. Okay, so this is all about the AC circuit. चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ AC सर्किट्स जो हमारे वो खत्म हो गए. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस कंडीशन वेयर XL इक्वल्स टू XC. So by taking this as our initiative point, we'll go with the resonance circuit. Okay, so that's why this is called as a resonance condition. So ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. Till then, stay studious, stay curious. Okay.